Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Taurus Ascendant and how the month of February 23 is going to pan out for the Taurus Ascendant people. So let us start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord is Venus and it is going to be stationed in the 10th house till 15th of February, and here it is going to combine with the 10th Lord itself, which is Saturn. So people who are undergoing MD of Venus will see an excellent time on the professional front. Doesn't matter whether they are doing a business or a job, this month will be an excellent month for them professionally. Combination of Venus and Saturn is a excellent combination for bringing in money and rewards, and in this case it is constructing a very powerful combination for you to enhance your professional status in the month of February. In the later half of the month, from 16th of February onwards, Venus will get posited in its own sign in the 11th house, and here exalted Venus is going to provide you a lot of gains from elder siblings, professional networks, and from your friends. 15th February to 11th of March is also a time to earn money from speculation, because Venus is going to aspect the fifth house of speculation through the seventh aspect, and this fifth house is owned by its great friend Mercury, which is posited in the ninth house. And the relationship between Venus and Saturn after Venus migrates to the 11th house will also be in the sextile degree. So this is an excellent time frame for you to earn money, not only from your profession but also from your social network. Amongst all the wealth generating combinations that are present in any chart, the combination of Venus and Saturn is considered the most auspicious, because Saturn is the planet of action and Venus indicates wealth. So here wealth is seen to be coming directly from your actions, and in this case you are going to rise massively in your profession. Your stature is going to increase at your workplace, and especially if you are undergoing Venus or Saturn MD, then this combination will fructify in the month of February. Mars is going to be stationed in the first house and it will continue to provide you with a lot of energy till 12th of March. Mars is going to aspect the seventh house, and Jupiter at the same time is also aspecting the seventh house through its ninth aspect, and both of these together will provide you the opportunity to get married till the time both these planets are stationed here. So till March 12, your probability of getting married increases manyfold. This Jupiter is also blessing you with an opportunity to start a business of your own. The disadvantage of having Mars in the first house is that it makes you angry, and you should control your temper, especially between 24th to 26th of February. Seventh house also indicates your spouse apart from business, and the best days to spend time with your spouse are from 27th and 28th of February. Mercury, which is the second house as well as the fifth house lord for you, is passing through the ninth house where it is going to combine with Sun. This is a very good situation that is getting created in the month of February. Mercury, as I said earlier, is a very benefic planet because both the houses, second and fifth, are related to money. People engaged in speculation will see an excellent time in February, especially between 5th, 6th, and 7th of February. And then again in the second half of the month. So after 15th of February, when Venus moves to the 11th house, you will again have a very strong probability of succeeding in speculation. All those people who are engaged in higher learning or pursuing post graduation or PhDs will have a good time, and the best time frame for them to succeed in their educational ventures will be from 21st to 23rd of February. Mercury is also the lord of the self-earned wealth. Then 13th, 14th, and 15th of February is going to be the best time for you financially. Taurus ascendant people always have more than one source of income, because the second house sign lord is Gemini, and Gemini itself indicates duality. And that is the reason why Taurus ascendant people are very rich compared to other ascendant people, because they have multiple sources of income. At least two sources are always available to them. Now, if they decide to invest in stock market, or if they decide to engage in the field of speculation, because Mercury also happens to own the fifth house, then they should always focus on the signs that are present in the second and 11th house. So if they utilize the signs that are placed in these houses, then the chances of them making money in the speculative market increases.
So if you invest in the sectors that are related to media, finance, software development, shipping, water management, or any beverage related companies, then it usually turns out to be very beneficial for the Taurus ascendant people. But for this to work out, you should also have a very good understanding of stock market. Simply gambling your money away is not advisable in any condition. Saturn has moved to your 10th house on 16th of January, and this Saturn is going to help you create a name for yourself in the professional sphere, especially in the next 2.5 years. This Saturn is going to demand a lot of hard work from you, but this will also give you its benefits in this long run. Now, there are also certain dates when you need to be very careful, and these dates where you need to be cautious and avoid making any key decisions are 8th and 9th of February and 24th, 25th, and 26th of February. Just avoid taking any key decisions during these 5 days. If you look overall, this is an excellent month, not only for rising in your professional sphere, but at the same time, this Venus is going to bring you a lot of wealth from your professional activities. So that's the summary for you for this month. I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वृषभ लग्न वालों के लिए फरवरी 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, अगर हम लग्नेश को देखें तो लग्नेश दशम भाव से भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर ये शनि के साथ बैठे रहेंगे फरवरी के महीने में। ये एक बहुत अच्छा राजयोग कहलाता है। दशमेश का दशम में होना और लग्नेश का दशम में होना, जिनकी भी कुंडली में, जन्म कुंडली में ऐसे योग होता है, ये लोग आपको हमेशा बहुत बड़े लेवल के बिजनेस में दिखेंगे। और यहाँ पर ये योग चूंकि गोचर में बन रहा है, तो आपके लिए प्रोफेशनल स्फीयर पे बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके सर्विस स्थान का भी मालिक बनता है, छठवें भाव का स्वामी, और वो भी दसम भाव में बैठा रहेगा। तो अगर आप नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। खास करके अगर आप शनि से जुड़े हुए व्यवसायों में हैं, यानी अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में डील करते हैं, आयरन एंड स्टील सेक्टर में आपका जॉब है, या फिर आप शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशंस में भी हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर परफ्यूम वगैरह से जुड़ा हुआ व्यवसाय से अगर आपका संबंध बनता है, तो भी ये महीने में आपको जॉब फ्रंट पे बहुत अच्छा समय देखने को मिलेगा। बिजनेसमैन्स के लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि लग्न स्थान में बैठा हुआ मंगल भी अपने ही भाव को देख रहा है। तो चाहे नौकरी हो या व्यवसाय, आपके लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा निकलेगा। और अगर आपकी शुक्र या शनि की महादशा चल रही है, तो यहाँ पर इस समय आप एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल राइज देखेंगे, क्योंकि ये एक तरह का राजयोग बनता है। देखिए, शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन होना, यानी ये किसी भी और धन योग से बड़ा धन योग कहलाता है। और यहाँ पे शनि का अपने भाव में केंद्र स्थान में बैठना, दशम भाव में, और उसका शुक्र के साथ कंबाइन होना, यानी आपको प्रोफेशनल लेवल पे पैसा आना ही आना है। और पैसे के अलावा व्यक्ति की तरक्की होती है, उसका स्टेचर बढ़ता है प्रोफेशनल लाइफ में, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर आपकी शुक्र या शनि की महादशा चल रही है, तो ये परिणाम आपको और तीव्रता से देखने को मिलेगा। 14 फरवरी तक आपको परिणाम मिल जाएगा, अगर आपका प्रमोशन होना है या आपको कोई अच्छा मान सम्मान मिलना है तो। 14 फरवरी के बाद शुक्र 11वें भाव में अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। यहाँ पे ये 15 फरवरी से 11 मार्च तक बैठे रहेंगे। तो ये आपके लिए स्पेक्यूलेशन से पैसा कमाने का बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो कि स्पेक्यूलेशन का स्थान है। और यहाँ पर इसके मित्र बुध की राशि पड़ती है, जो कि स्वयं नवम भाव में बैठा हुआ है। तो आपको हर तरह से स्पेक्यूलेशन में पैसा कमाने के लिए हरी झंडी मिलेगी। और यहाँ पर जब शुक्र मूव कर जाएगा, तो नवम भाव में बैठे हुए बुध के साथ वो त्रिरेकादश योग भी बनाएगा, तो वहां से भी आपको अच्छा योग बनता हुआ दिखता है। मंगल लग्न स्थान में बैठे रहेंगे और यहाँ पे व्यक्ति को ऊर्जावान बनाने का काम करते रहेंगे। मंगल यहाँ पे 12 मार्च तक बैठे रहेंगे। तो सप्तम भाव को 12 मार्च तक मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से देखेंगे और गुरु भी 9वीं दृष्टि से देखते रहेंगे। तो जितने भी लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, उनके लिए ये बहुत स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी बनाता है शादी के बंधन में बंधने के लिए। और इसके अलावा अगर आप अपना स्वयं का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि लगती है सप्तम भाव में, और जो कि अभी आपको वो प्रदान कर रहा है फरवरी के महीने में भी। मंगल यहाँ पे बैठ के व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, लेकिन साथ में उसको गुस्से में भी भर देता है। तो अगर आपको अपना टेम्पर कंट्रोल
कर सकें। खास करके 24, 25, 26 फरवरी को तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि चंद्र वहां से गुजरेंगे तो व्यक्ति के किसी भी वोलाटाइल सिचुएशन में या फाइट्स में पड़ने की संभावना रहती है। सप्तम भाव से आप अपने पति या पत्नी को भी देखते हैं, तो अगर आप अपने स्पाउस के साथ समय बिताना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी 27-28 फरवरी सबसे अच्छा समय है। बुध पे अगर हम नजर डालें तो बुध सूर्य के साथ कंबाइन करेंगे 9वें भाव में, तो ये बहुत अच्छा सिनेरियो बनता है। सूर्य बुध वैसे भी हमेशा साथ साथ ही चलते हैं, लेकिन ये त्रिकोण भाव है, नवम भाव भाग्य स्थान। और मरकरी जैसा मैंने बताया द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो मरकरी भी आपके लिए बहुत ही शुभ ग्रह हैं। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं 5 से 7 फरवरी के बीच में स्पेक्यूलेशन से पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। और फिर जब सेकेंड हाफ है फरवरी का, 15 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक, तो जितने भी लोग हायर लर्निंग में एंगेज हैं, यानी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, पीएचडी वगैरह परसू कर रहे हैं, तो भी उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी। 21 से 23 फरवरी का समय ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। अभी मरकरी चूंकि द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, सेल्फ अर्न्ड वेल्थ को ये दिखाता है, खुद की मेहनत से कमाया हुआ धन। तो 13, 14 फरवरी और 15 फरवरी 3 दिन आपके लिए फाइनेंस की दृष्टि से बहुत अच्छे रहेंगे। जितने भी आपके वृषभ लग्न के लोगों को आप देखोगे तो ये लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, क्योंकि शुक्र अपने आप में ही लग्जरी का कारक होता है। अगर शुक्र बहुत ही खराब पोजीशन में बैठा हो, जैसे अष्टम में बैठ जाए जन्म कुंडली में, यहाँ पे उसके शत्रु की राशि आ जाती है गुरु की, और मान लीजिए शनि का प्रभाव पड़ जाए या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर अलग बात हो जाती है। नहीं तो अदरवाइज आपको हमेशा वृषभ लग्न के लोगों के पास पैसा मिलेगा। इसका एक कारण ये भी है कि द्वितीय स्थान में मिथुन राशि पड़ती है। मिथुन का संबंध डुअलिटी से है। मिथुन हो गया, कन्या हो गया, ये साइंस आपके डुअल साइंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर इनका हमेशा एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, जनरली दो तो होते ही हैं, और इसी वजह से ये ज्यादा पैसे वाले होते हैं बाकी लग्न वाले लोगों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको उन्हीं शेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिनकी की राशियां आपके द्वितीय या 11वें भाव में रहती हैं। तो अगर आप मीडिया में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी मीडिया सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स में, फाइनेंस में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, शिपिंग में, वाटर मैनेजमेंट में, या कोई भी ऐसी कंपनियां जो पेय बनाती हैं बेवरेजेस, तो ये जनरली आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। इसके लिए आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में पंचम भाव से धन स्थान का कनेक्शन बनता है कि नहीं। अगर वो बन रहा है तो आप इन कंपनीज में पैसा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स होते हैं जो कि वृषभ लग्न वालों के लिए बहुत फायदेमंद कहलाते हैं। अब शनि आपके दशम भाव में 16 जनवरी से आ गए हैं, और ये यहाँ पे 2025 के आखिरी तक बैठे रहेंगे। दशम भाव के स्वामी का दशम भाव में बैठना बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि आपके भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। तो ये आपसे यहाँ पर मेहनत तो कराएंगे, लेकिन ये आपको बहुत लंबा टाइम का फायदा करा के देंगे। तो अगले 2.5 साल अगर आप कमर कस के मेहनत करते हैं तो आपको बेनिफिट्स इन 2.5 सालों में ही मिलना शुरू हो जाएंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। अब महीने में आपको कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको सावधान रहना पड़ता है। तो ये दिन आपके लिए हैं 8 और 9 फरवरी, और 24, 25 और 26 फरवरी। इन दिनों में आप सावधान रहिए और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालिए। अगर आप देखिए तो ये महीना बहुत ही धमाकेदार होगा आपके लिए, अगर खास करके प्रोफेशनल फ्रंट पे तरक्की देखने को आपको मिलेगी। और ये जो शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन ये बहुत जोरदार बना है फरवरी के महीने में, और ये आपको प्रोफेशनल आपके स्फीयर में नाम और फेम बना के देगा, और एक तरक्की भी लाके देगा, खास करके अगर आपकी शुक्र शनि की महादशा चल रही हो। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।